नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिले में दलित पर अत्याचार करने वालों पर कोई कार्यवाही नहीं, ज्ञानेश्वर सिंगारे का आरोप। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने पंचमसालियों से कहा, सेकेंड डे कोटा के लिए बीसी पैनल से संपर्क करें। कर्नाटक सरकार पंचायत अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के वेतन में बढ़ोतरी पर विचार करेगी। एकलव्य, द्रोणाचार्य, सावरकर, मनुस्मृति और युवा, राहुल गांधी ने संसद में सरकार पर जमकर साधा निशाना। असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, बोले वक्फ की जायदाद छीनने की कोशिश हो रही है। इंडिगो फ्लाइट की कराची में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग, जा समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर जिले में पिछले कई दिनों से दलितों पर अत्याचार किया जा रहा है, लेकिन इन पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। ऐसा आरोप बहुजन समाज पार्टी के राज्य कार्यदर्शी ज्ञानेश्वर सिंगारे ने लगाया है। वह आज बीदर शहर के पत्रिका भवन में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीदर जिले के भालकी तालुका के चाड़कापुर, हुमनाबाद और हाल ही में बिलासपुर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा का अपमान किया गया है। इस प्रकार दलितों पर अत्याचार किया जा रहा है। इन सभी घटनाओं को नियंत्रण करने में जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे और प्रशासन पूरी तरह से विफल हुई है। इस अवसर पर पार्टी के जिला अध्यक्ष कपिल गोडबोड़े, मुख्य सचिव शक्तिकांत भावदोड्डी सहित अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन पुपुराज का कवरेज। ಅಧಿಕಾರದಾಗ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದುರಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆದಗೆಟ್ಟಿದೆ। ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ। ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿರುವ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ವಿಳಾಸ್ಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ, ತಡರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಬಂಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ವರಿಷ್ಠ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಹಾಗೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಘಟನೆಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಳತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 9/2/2024ರಂದು ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ ಕೆಲವು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಅಡ್ಡಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾಗೃತಿಗೆ। ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ। ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ತವರು ಭಾಲ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುತ್ತದೆ। ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಲ ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ದು ದಲಿತರ ಪರವಾಗಿ ಅಂತ ತಂಬದು ನಮ್ದೊಂದು ಸವಾಲಾಗಿದೆ। ಬರೀ ಕೇವಲ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ 39,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ SC ST ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಲುವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀ ಪತ್ರಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾ ಇದೆ। ಆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದ। ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಜನರಲ್ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ। ಆಮೇಲೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರ ಅನುದಾನ ಏನು ಬರ್ತದ, ಆ ಶಾಸಕರ ಅನುದಾನ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮನ ಬಂದಂತೆ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಇಡ್ತಾರೆ। ಎಲ್ಲಿ ನೆಸೆಸರಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇಡಲ್ಲ, ತನಗೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ KKRDB ವತಿಯಿಂದ 475 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಬಂದಿದೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕೇಳಕ್ ಹೋದಾಗ ಇನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಜೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಪತ್ರಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಇನ್ನ ಬಜೆಟ್ ಬರೋದಿದೆ, ಪ್ಲಾನ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ಕೆಲವು ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। DSP ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಆಡಳಿತ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಕೋಮು ಗಲಭೆ ಮತ್ತು ದೌರ್ಜನ್ಯ ದಿನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ।
ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಾರ್ಟಿ ಧ್ರುವ ಖಂಡಿಸಲು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ತಾವುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಘಟನೆ ನಡೀಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳು ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರೇ ಜವಾಬ್ದಾರರು. ಅವ್ರು ಆಗಿ ನಡೆದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗಿದೆ, ರೈತರು ಹೊಲಗಳು ಕಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ DF ಅವ್ರ ಕೈಗೊಂದಿಯಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಜಮೀನು ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡಿರೋ ಬಿಟ್ಟು ರೈತರ ದಂಕಿ ಜಮೀನು ಕಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳಿಂದ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಈ ಮುಂದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಕ್ತಿಕಾಂತ್ ಬಾವಿದೊಡ್ಡಿ ಅಂತ, ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಾರ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಘಟನೆಗೆ ನೇರ ಹೊಣೆ ಯಾರಾದರೂ ಇದರಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರೇ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತಾರ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 1.5 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ. 1.5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8 ರಿಂದ 10 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅದು SC/ST OBCಗಳ ಮೇಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ SC/STಗಳ ಮತಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ಅವ್ರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತು ಗೆದ್ದಿದಾರ. ಎಲ್ಲಾ ದಲಿತರ ಓಟ್ಗಳಿಂದ, ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಓಟ್ಗಳಿಂದ ಅವ್ರು ಲೀಡರ್ ಬಂದು ಗೆದ್ದಿದಾರ. ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಪುನಃ ಈ ಜಿಲ್ಲಾದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ನೇರ ಹೊಣೆಯಾಗಿರ್ತಾರ. ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವನ್ನ ಅವ್ರ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರ ಕೈಗೊಂಬೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ. ನಾವು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಪತ್ರಿಕಾ दलित रक्षण वेदिके महिला घटक की जिला अध्यक्ष के रूप में विजय लक्ष्मी शिंदे को नियुक्त किया गया है। आज शहर के मैलूर क्षेत्र के एक निजी होटल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वेदिके के जिला अध्यक्ष अंबादास गायकवाड़ ने श्रीमती विजयलक्ष्मी को नियुक्त किया। इस मौके पर विजयलक्ष्मी शिंदे का सम्मान आदि किया गया। इस अवसर पर महिला घटक के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता आदि उपस्थित रहे। कैमरामैन पुपराज का कवरेज। ಬೀದರ್ ನಗರದ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಎನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಂಧೆ ಅವರನ್ನು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನುಳಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ತಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಆಯಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ತಾವು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ಮಹಿಳೆಯರ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಕೋಡ್ ಬಿಲ್ಲನ್ನು, ಏನು ಹಿಂದೂ ಕೋಡ್ ಬಿಲ್ ಇತ್ತು, ಆ ಕೋಡ್ ಬಿಲ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಕೂಡ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೂಡ ಇದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ದಲಿತ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಸಂಘಟನೆ ಬೆಳೆಸೋಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆಶೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಆರ್ಥಿಕವಾದಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೋರಾಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೈನಾರಿಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೇ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಘಟ ಸದಾ ಕಂಕಣಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಆಶೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆ ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಂಬಾದಾಸ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್, ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಬೀದರ್ದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ. रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920
8482221297. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने पंचमसाली समुदाय को सेकेंडरी श्रेणी के तहत आरक्षण के लिए पिछड़ा वर्ग के लिए स्थायी आयोग से संपर्क करने की सलाह दी है। सिद्धरामैया ने गुरुवार को आरक्षण के लिए समुदाय की दबाव की रणनीति को असंवैधानिक करार दिया। उन्होंने यहां पत्रकारों से बातचीत में पूर्व आयोग के अध्यक्ष जयप्रकाश हेगड़े की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि सेकेंड ए और सेकेंड बी श्रेणी के तहत मौजूदा कोटा अपरिवर्तित रहना चाहिए। सेकेंड बी श्रेणी के तहत 4% आरक्षण को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। विपक्षी दलों के इस आरोप का जवाब देते हुए सरकार पंचमसाली की मांग के खिलाफ है। सिद्धरामैया ने कहा कि बसवजया मृत्युंजय सहित सभी नेताओं के विचारों का स्वागत है। समुदाय की मांग पर संविधान के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। पंचमसाली समुदाय को अपनी मांगों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन यहाँ शांतिपूर्ण होना चाहिए। उन्होंने कहा किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने समुदाय के सदस्यों से संयम बरतने की अपील की। ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री प्रियांक खरगे ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार वित्त विभाग की रिपोर्ट मिलने तथा मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के 3 महीने के भीतर पंचायत अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के वेतन बढ़ाने पर विचार करेंगे। विधान परिषद में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा सदस्यों धनंजय सिंह जी और डीएस अरुण के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष संघों की मांगों के बारे में सुना है और उनके अनुरोधों को वित्त विभाग को भेज दिया था तथा जल्द ही इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा मैंने उनके अनुरोध को राज्य वित्त विभाग को भेज दिया है, जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। मैंने उनसे कहा कि वे उन मांगों के लिए दबाव न डालें जिनमें कानूनी अड़चनें आ सकती हैं और कानूनी प्रावधान के अंतर्गत आने वाली मांगों को वित्त विभाग को भेज दिया गया है, जिसे 3 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। उन्होंने परिषद से कहा हमें बस 3 महीने का समय दीजिए और हम पारिश्रमिक बढ़ा देंगे। मांड्या में होने वाले 87वें कन्नड़ साहित्य सम्मेलन में खाने के मेन्यू को लेकर विवाद छिड़ गया है। कन्नड़ साहित्य परिषद ने प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों में मांसाहारी भोजन के साथ साथ शराब और धूम्रपान को भी शामिल किया है। इस पर काफी विरोध हुआ है। इससे कई कन्नड़ कार्यकर्ता, प्रगतिशील संगठन और अन्य लोग नाराज हैं, जिनका कहना है कि आयोजकों को उनकी भोजन संबंधी आदतों या पसंद पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। कन्नड़ रक्षण वेदिके के अध्यक्ष HD जियाराम ने एक ज्ञापन प्रस्तुत कर सम्मेलन में मांसाहारी भोजन परोसने की अपील की। विभिन्न क्षेत्रों से परेशानी और आलोचना को देखते हुए परिषद ने मेनू से मांसाहारी व्यंजन हटा दिए तथा 20 दिसंबर से आयोजित होने वाले 3 दिवसीय सम्मेलन पर प्रतिबंध लगा दिए। लेकिन यहाँ मुद्दा अभी भी शांत नहीं हुआ है और कन्नड़ कार्यकर्ता तथा अन्य लोग सड़कों पर उतर आए हैं तथा प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों में मांसाहारी भोजन को शामिल करने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के सामने अंडे खाकर विरोध जताया और जहां तक आयोजन स्थल पर भी अंडे परोसने की धमकी दी। उन्होंने माओवादियों पर सम्मेलन को हाईजैक करने का भी आरोप लगाया। परिषद के अध्यक्ष महेश जोशी ने कहा है कि भोजन परोसे जाने वाले भोजन का फैसला खाद्य समिति करेगी और यह परिषद का काम नहीं है। जिला मंत्री एन चलुवरायस्वामी ने कहा कि वे हड़ताली संगठनों से बातचीत करेंगे। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलेटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। Admission are open for the academic year 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के अन्य समाचार। संविधान की 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज लोकसभा में 26 मिनट तक भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने पिछले भाषण में अभय मुद्रा की बात की। राहुल गांधी ने मनुस्मृति और संविधान की प्रति रखी और
कहा कि सावरकर चाहते थे कि मनुस्मृति भारत के संविधान की जगह ले। आज मनुस्मृति ही संविधान है। राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया कि जिस तरह एकलव्य का अंगूठा काटा गया, उसी तरह से आज सरकार देश के युवाओं का अंगूठा काट रही है। उन्होंने कहा कि आज भारत में एक वैचारिक लड़ाई चल रही है और विपक्ष की ओर संविधान के विचारों की संरक्षक है। राहुल गांधी ने द्रोणाचार्य और एकलव्य की गाथा का उल्लेख करते हुए कहा कि जैसे एकलव्य का अंगूठा काटा गया, उसी तरह सरकार पूरे देश में आप पूरे देश का युवाओं का अंगूठा काट रही है। राहुल गांधी ने कहा, जब आप एक उद्योगपति को धारावी परियोजना देते हो, बंदरगाह और एयरपोर्ट देते हो, आप हिंदुस्तान का अंगूठा काटते हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि विनायक दामोदर सावरकर ने संविधान के बारे में कहा था कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। कांग्रेस नेता ने सत्ता पक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा, जब आप संविधान की रक्षा की बात करते हैं तो आप सावरकर को कमतर और अपमानित करते हैं। देश में संविधान के 75 साल पूरे होने पर संसद में चर्चा हो रही है। संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। इसी बीच संविधान पर चर्चा के दौरान आज पीएम नरेंद्र मोदी लोकसभा में विपक्ष के आरोपों का जवाब देंगे। पीएम मोदी ने पहले राहुल गांधी ने लोकसभा में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसी बीच एआईएमआईएम के मुखिया व लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी केंद्र सरकार पर खूब निशाना साधा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों के मस्जिद अब खतरे में है। इस दौरान वक्फ और मुसलमानों को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार पर खूब निशाना साधा। असदुद्दीन ने लोकसभा में कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि वक्फ का ताल्लुक संविधान से नहीं है। आर्टिकल 26 पढ़ लीजिए। आप अपनी ताकत की बुनियाद पर इसे छीनना चाहते हैं। उर्दू को खत्म कर दिया गया है। कल्चर की बात आप इनसे पूछ लीजिए। भाजपा का कल्चर रेवोल्यूशन हिंदुत्व का है। उन्होंने कहा कि दिसंबर वक्फ की जायदाद छीनने की कोशिश की जा रही है। मुसलमान चुनाव जीत नहीं पा रहे। मुस्लिम बेटियों को हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। मस्जिदें अब खतरे में आ गई हैं और गौरक्षक हत्या कर रहे हैं। उन्होंने इस दौरान कहा कि वक्फ की जायदाद छीनने की कोशिश की जा रही है। डेलिमिटेशन में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को माना जाए। इंडिगो की एक फ्लाइट की आज शनिवार को पाकिस्तान के कराची में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। दरअसल ये फ्लाइट नई दिल्ली से उड़ान भरकर सऊदी अरब के जेदा में जाने वाली थी। इसी बीच फ्लाइट की कराची में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। मिली जानकारी के अनुसार सऊदी अरब के जेदान जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट को इमरजेंसी स्वस्थ स्थिति के कराची में लैंडिंग करना पड़ा। फ्लाइट की लैंडिंग कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कराई गई। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सीसीए के सूत्रों ने बताया है कि नई दिल्ली से रवाना हुआ विमान जब पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में था, तभी एक पुरुष यात्री गंभीर रूप से बीमार हो गया। जियो न्यूज की खबर के अनुसार बीमार हुए भारतीय यात्री की आयु 55 वर्ष है। सूत्रों ने कहा है कि विमान के पायलट द्वारा ऑक्सीजन दिए जाने पर भी यात्री की तबीयत ठीक नहीं हुई। इसके बाद कराची एयरपोर्ट पर हवाई यातायात नियंत्रण एटीसी से संपर्क किया गया। उन्होंने बताया, हवाई यातायात नियंत्रण ने मानवीय आधार पर इंडिगो विमान को कराची में उतरने की अनुमति दे दी, जिसके बाद यात्री के आपातकालीन उपचार के लिए एक मेडिकल टीम विमान में पहुंची। खबर में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि यात्री के उपचार के बाद विमान कराची से रवाना हुआ, जबकि जेदा जाने के बजाय यात्री नई दिल्ली लौट गए। भारतीय जनता पार्टी नीत महाराष्ट्र की महायुति सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार 15 दिसंबर को होगा। मंत्रिमंडल विस्तार का कार्यक्रम नागपुर में होगा। इस दौरान नए मंत्री नागपुर में आयोजित समारोह में पद की शपथ लेंगे। मिली जानकारी के अनुसार 15 दिसंबर को नागपुर के राजभवन में मंत्रिमंडल के गठन का समारोह होगा। बता दें कि महायुति सरकार के मंत्रिमंडल में सीएम सहित कुल 43 सदस्य हो सकते हैं। बता दें कि महाराष्ट्र विधिमंडल का शीतकालीन अधिवेशन 16 दिसंबर से नागपुर में शुरू होने जा रहा है। इससे एक दिन पहले 15 दिसंबर को शपथ ग्रहण को होगा। साथ ही साथ उसी दिन शीतकालीन सत्र अधिवेशन में जिन बिंदुओं पर कामकाज किया जाएगा, उसके बारे में मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री जानकारी देंगे। दोपहर में विपक्ष अपनी रणनीति का खुलासा भी करेगा कि किस तरीके से शीतकालीन सत्र में वह सरकार को घेरेगा। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। Admission are open for the academic year 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
ब्रेक के बाद देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने संसद में अपने खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के पारित होने पर शनिवार को कहा कि कभी हार नहीं मानेंगे। राष्ट्रपति ने अपने कार्यालय के माध्यम से यह बयान जारी किया है। यून ने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल की राह में इसे अस्थायी विराम करार देते हुए अधिकारियों से सरकार के क्रियाकल्प स्थिरता बरकरार रखने का आह्वान किया। महाभियोग प्रस्ताव पर संसद में मतदान हुआ, जिसके समर्थन में 204 जबकि विरोध में 85 वोट पड़े। संसदीय वोट राष्ट्रपति के रूप में उनकी शक्तियों को निलंबित करता है। उन्हें संवैधानिक न्यायालय के फैसले का इंतजार है, जो तय करेगा कि उनको औपचारिक रूप से पद से हटाया जाए या नहीं। यून ने 3 दिसंबर को देश में मार्शल लॉ लागू करने का आदेश दिया था, जिसके कारण देश में राजनीतिक उथल पुथल मच गई थी। अधिकारी उन पर लगे विद्रोह के आरोपों की जांच कर रहे हैं। अदालत के पास यह तय करने के लिए 180 दिन का समय यून को राष्ट्रपति पद से हटाया जाए या नहीं। अगर पद से हटा दिया जाता है तो 60 दिन में आम चुनाव कराए जाएंगे। पाकिस्तान की हालत खराब है। एक तरफ महंगाई और भूखमरी से जनता बेहाल है, तो वहीं मुल्क आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। अब ऐसे में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को लेकर भी बुरी खबर सामने आई है। दरअसल आवश्यक पुर्जों और अन्य उपकरणों की कमी के कारण पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA के 34 विमानों में से 17 को उड़ान भरने से रोक दिया गया है, जिससे वो सेवा से बाहर हो गए हैं। एयरलाइंस के एक सूत्र ने कहा कि स्थिति यह है कि PIA बेड़े के 17 विमान सेवा से बाहर है। वर्तमान में एयरलाइंस के बोइंग 777 बेड़े में 12 में से 7 विमान खड़े हैं। इसके अलावा 17 एयरबस A320 विमानों में से 7 भी उड़ान भरने लायक नहीं है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के छोटे ATR विमान भी इसे छूते नहीं है। वर्तमान में 5 में से केवल 2 विमान ही काम कर रहे हैं। उड़ान से बाहर रखे गए विमानों में इंजन, लैंडिंग गियर, सहायक विद्युत इकाइयां और अन्य महत्वपूर्ण भागों सहित आवश्यक घटकों की कमी है। एयरलाइंस के सूत्रों ने कहा है कि धन की कमी और संबंधित मंत्रालयों से उचित मंजूरी न मिलना समस्या का मुख्य कारण है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर जिले में दलित पर अत्याचार करने वालों पर कोई कार्यवाही नहीं, ज्ञानेश्वर सिंगारे का आरोप। कर्नाटक के CM सिद्धरामैया ने पंचमसालियों से कहा, सेकेंड डे कोटा के लिए BC पैनल से संपर्क करें। कर्नाटक सरकार पंचायत अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के वेतन में बढ़ोतरी पर विचार करेगी। एकलव्य, द्रोणाचार्य, सावरकर, मनुस्मृति और युवा। राहुल गांधी ने संसद में सरकार पर जमकर साधा निशाना। असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, बोले वक्फ की जायदाद छीनने की कोशिश हो रही है। इंडिगो फ्लाइट की कराची में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग, जा रही थी सऊदी। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।